یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ سادہ زندگی جیتے تھے، جب گھروں میں دولت کم مگر محبت زیادہ ہوتی تھی، اور جب بیٹیاں باپ کی آنکھوں کا نور سمجھی جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبد الرحمن نامی شخص رہتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ تھا نہ امیر، مگر اس کا دل سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ عبد الرحمن کی زندگی کبھی مکمل تھی۔ اس کے آنگن میں ہنسی گونجتی تھی، اس کے گھر میں برکت تھی، مگر وقت نے اس سے اس کی شریک حیات چھین لی۔ بیوی کی وفات نے عبد الرحمن کو اندر سے توڑ دیا، مگر اس نے اپنی بیٹیوں کے سامنے کبھی کمزوری ظاہر نہ ہونے دی۔ وہ اکثر رات کو اکیلے بیٹھ کر آہستہ آہستہ کہتا، یا اللہ، تو ہی ان بچیوں کا محافظ ہے، میں تو بس ایک کمزور بندہ ہوں۔ عبد الرحمن کی 3 بیٹیاں تھیں، عائشہ، سنجیدہ، بردبار، ماں جیسی شفقت رکھنے والی، حفصہ، نرم دل، جلد رونے والی مگر سچی، اور سب سے چھوٹی مریم، کم گو، گہری نظر رکھنے والی، عقل مند۔ مریم کی آنکھوں میں بچپن کم اور سمجھداری زیادہ تھی۔ وہ باتوں کو صرف سنتی نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے چھپی نیت کو بھی پڑھ لیتی تھی۔ عبد الرحمن اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ خود ان کے لیے کپڑے لاتا، خود ان کے بالوں میں چوٹی باندھنا سیکھتا، اور جب کوئی بیمار ہوتی تو پوری رات جاگتا۔ وقت گزرا، بیٹیاں جوان ہونے لگیں۔ اب وہ اپنے باپ کے لیے خود کھانا پکانے لگیں۔ عبد الرحمن جب صبح کام پر جاتا تو تینوں بیٹیاں مل کر اس کے لیے کھانا تیار کرتیں۔ عائشہ کہتی، ابا جان، آج سالن اچھا بنا ہے۔ حفصہ مسکرا کر کہتی، روٹیاں گرم ہیں، راستے میں ٹھنڈی نہ ہو۔ اور مریم خاموشی سے کھانے کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ عبد الرحمن اکثر کام پر جاتے ہوئے کہتا، میری بیٹیاں ہوں تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام شمائلہ تھا۔ وہ بیوہ تھی اور اس کی ایک بیٹی نائلہ تھی۔ بظاہر شمائلہ کمزور، مگر اس کا دل حسد اور لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے عبد الرحمن کا گھر، اس کی بیٹیاں اور ان کا سکون ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ شمائلہ اکثر آگ مانگنے کے بہانے عبد الرحمن کے گھر آتی، لیکن مریم کو شروع سے ہی اس عورت سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ آہستہ سے بہنوں سے کہتی، مریم، بدگمانی اچھی نہیں، وہ بیوہ ہے، مجبور ہے۔ حفصہ بھی کہتی، اگر وہ آگ لے جاتی ہے تو کیا ہو گیا؟ مریم خاموش ہو جاتی، مگر دل میں ایک کھٹک رہتی۔ وقت کے ساتھ شمائلہ نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ وہ موقع پا کر عبد الرحمن کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ جب عبد الرحمن کھانا کھاتا تو منہ بنا لیتا۔ کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا، مگر وہ کبھی بیٹیوں کو ڈانٹتا نہیں تھا۔ وہ خود سے کہتا، میری بچیاں ہیں، نادانی میں ہو جاتا ہے۔ مگر ایک دن اس کے دل میں شک پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، میں خود دیکھوں گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگلے دن وہ چھپ کر دیکھنے لگا۔ عائشہ صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، حفصہ احتیاط سے سالن چلا رہی تھی، اور مریم برتن چمکا رہی تھی۔ کھانا بالکل درست بنا۔ عبد الرحمن کو اطمینان ہونے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ شمائلہ اندر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظریں بچائیں اور لمحوں میں راکھ کھانے میں ملا دی۔ یہ منظر دیکھ کر عبد الرحمن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار مریم کی باتیں یاد آئیں۔ اس کے دل میں آگ لگ گئی، مگر وہ ابھی خاموش رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی آگے چل کر اس کی بیٹیوں کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ عبد الرحمن نے جب اپنی آنکھوں سے شمائلہ کو کھانے میں راکھ ملاتے دیکھا تو اس کے دل میں غصے کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے اس عورت پر کتنا بھروسہ کیا، اور یہ میری معصوم بیٹیوں کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس رات عبد الرحمن نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ دیر تک صحن میں ٹہلتا رہا۔ بار بار اس کی نظر بیٹیوں کے معصوم چہروں پر جاتی اور دل کٹ کر رہ جاتا۔ اگلی صبح اس نے شمائلہ کو اپنے گھر بلایا۔ شمائلہ بڑے ناز و ادا کے ساتھ آئی، چہرے پر معصومیت کا نقاب اوڑھے، آنکھوں میں بناوٹی نمی لیے۔ عبد الرحمن نے سخت لہجے میں پوچھا، شمائلہ، تم نے میرے کھانے میں راکھ کیوں ملائی؟ تمہیں یہ حرکت کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شمائلہ نے ایک لمحے کو سر جھکایا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
वो सीने पर हाथ रखकर बोली, अल्लाह गवाह है अब्दुर्रहमान, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो बस ये आजमाना चाहती थी कि तुम वाकई अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो या नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ी और निहायत ड्रामाई अंदाज में बोली, मैंने सोचा था अगर खाना खराब हो तो तुम बच्चियों को डांटोगे, मगर तुमने कभी उन पर शक तक नहीं किया। तब मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत नेक और मोहब्बत करने वाले बाप हो। अब्दुर्रहमान का दिल नर्म पड़ने लगा। शुमाइला की आवाज़ में अजीब सी मिठास थी, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर खूबसूरती। अब्दुर्रहमान दिल ही दिल में कहने लगा, शायद मैं ही गलत सोच रहा था। शुमाइला ने बात खत्म करते हुए कहा, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। वो नहीं जानता था कि ये मुआफ़ी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। चंद दिन बाद अब्दुर्रहमान के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। वो सोचने लगा, मेरी बेटियों को माँ की कमी तो महसूस नहीं, मगर एक औरत घर में हो तो घर संभल जाता है। शुमाइला का चेहरा, उसकी बनावटी आजिज़ी और उसकी बातों का असर अब्दुर्रहमान के दिल पर छा चुका था। बगैर बेटियों से मशवरा किए उसने शुमाइला से निकाह कर लिया। जब शुमाइला इस घर में दुल्हन बनकर आई तो बेटियों के दिल बैठ गए। मरियम ने पहली ही नज़र में समझ लिया, अब असल मुसीबत शुरू होगी। शादी के चंद दिन बाद ही शुमाइला का असल चेहरा सामने आ गया। वो अब्दुर्रहमान के सामने नर्म और बेटियों के सामने सख्त बन जाती। वो चाहती थी बेटियां घर से निकल जाएं, सारा ध्यान सिर्फ उस और उसकी बेटी नायला पर रहे। जायदाद और मोहब्बत दोनों उसके कब्जे में हों। नायला हमेशा कीमती कपड़े पहनती, बाल खुले रखती और खुद को बड़ी शान से पेश करती, जबकि आयशा, हफ्सा और मरियम को सुबह से शाम तक घर के काम में लगा दिया जाता। चूल्हा, बर्तन, सफाई, कपड़े, सब कुछ उन्हीं के जिम्मे। शुमाइला तंजिया लहजे में कहती, बेटियां हो तो काम करना ही पड़ता है। खाने में उनका हिस्सा कम होता गया, पहले गोश्त कम, फिर रोटी कम और आखिरकार कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता। अब्दुर्रहमान को शुमाइला रोज शिकायतें करती, तुम्हारी बेटियां बदतमीज हैं, मेरी बात नहीं मानती। अब्दुर्रहमान परेशान हो जाता, मगर वो हकीकत नहीं देख पा रहा था। एक दिन आयशा और हफ्सा कमरे में बैठकर रो रही थीं। मरियम ने उन्हें गले लगाकर कहा, मेरी प्यारी बहनों, आओ आज कहीं बाहर चलते हैं ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। तीनों बहनें खामोशी से घर से निकलीं और चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करके खूब रोईं। मरियम सिसकते हुए बोली, या अल्लाह, हम मजलूम हैं, तू सब देख रहा है ना। उसी वक्त एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वहां से गुजरे। ये थे हजरत फाजिल रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बेटियों की बातें सुनी और नरमी से कहा, बेटियों, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। ये कहकर उन्होंने उन्हें एक अनार के दरख्त का रास्ता बताया। जंगल की खामोश फिजा में तीनों बहनों के आंसू मट्टी में जज्ब हो रहे थे। दरख्त के पत्ते हल्की हवा में सरसरा रहे थे, जैसे वो भी इन मजलूम बेटियों के गम में शरीक हों। मरियम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लरसती आवाज में बोली, या अल्लाह, तू हमारे हाल से वाकिफ है। हमने किसी का हक नहीं मारा, फिर भी आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। उसी लम्हे नूरानी चेहरे वाले हजरत फाजिल उनके करीब आए। उन्होंने शफकत से कहा, बेटियों, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। फिर उन्होंने लाठी जमीन पर टिकाई और कहा, मेरी झोंपड़ी यहां से ज्यादा दूर नहीं, इसके पास एक अनार का दरख्त है, तुम वहां जाओ और जितना चाहो खा लो। तीनों बहनें हैरान रह गईं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक पैदा हुई। वो खुशी खुशी झोंपड़ी के पास पहुंची। वहां वाकई एक शानदार अनार का दरख्त खड़ा था। अनार सुर्ख याकूत की तरह चमक रहे थे, जैसे कुदरत ने खुद उन्हें सजाया हो। आयशा ने एक अनार तोड़ा, हफ्सा ने दूसरा और मरियम ने तीसरा। जब उन्होंने पहला दाना मुंह में रखा तो यूं लगा जैसे भूख ही नहीं, दिल की सारी थकन भी मिट गई हो। मरियम ने आहिस्ता से कहा, ये अनार नहीं, अल्लाह की रहमत है। पेट भरने के बाद उन्होंने हजरत फाजिल का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गईं। शुमाइला ने देखा कि जिन लड़कियों को वो भूखा रखती है, वो ना कमजोर हो रही हैं, ना बीमार।
बल्कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी आ गई थी और हुस्न दिन ब दिन बढ़ रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाई, मैं इन्हें दाना पानी नहीं देती, फिर भी ये ऐसी क्यों लगती हैं जैसे किसी नेमत में पल रही हों। उसने अपनी बेटी नायला को बुलाकर कहा, इनका पीछा करो और देखो ये कहाँ जाती हैं। अगले दिन नायला छुपकर उनके पीछे गई। जब तीनों बहनें अनार तोड़कर खा रही थीं तो मरियम की नज़र उस पर पड़ गई। मरियम ने फौरन कहा, ये लड़की हमें देख रही है, अगर इसने जाकर सब बता दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन आयशा और हफ्सा ने नरमी से कहा, मरियम ये बेकसूर है, इसका क्या कसूर। उन्होंने नायला को पास बिठाया और एक अनार उसके हाथ में थमा दिया। नायला ने अनार नहीं खाया और भागकर मां के पास जाकर सब बता दिया। शुमाइला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने दिल में कहा, मैं इस नेमत को खत्म करके रहूंगी। उसी शाम उसने अब्दुर रहमान को सर दर्द का बहाना बनाकर कहा, मेरा दर्द सिर्फ एक दवा से ठीक होगा। जंगल के अनार के दरख्त को जड़ से उखाड़ो और उसकी जड़ें जलाकर लगाओ। अंधा इश्क इंसान को अंधा कर देता है। अब्दुर रहमान ने चंद आदमियों को भेजकर वो दरख्त जड़ से उखड़वा दिया। जब अगले दिन बहनें जंगल पहुंची तो अनार का दरख्त गायब था। वहीं बैठकर तीनों फूट फूट कर रो दी। इसी वक्त हजरत फाजिल नमूदार हुए। उन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया और फरमाया, अल्लाह देने पर आए तो कोई रोक नहीं सकता। जमीन फटी और वहां से दूध की नहर बहने लगी। उन्होंने एक मिट्टी का प्याला दिया, जितना चाहो पियो। वो दूध शहद से ज्यादा मीठा था। बहनें रोज यहां आकर अपना पेट भरने लगी। शुमाइला ये देखकर पागल होने लगी। इस बार उसने पूरा जंगल बर्बाद करवा दिया। नहर बंद, झोंपड़ी जल गई। जब बहनों ने सब कुछ उजड़ा देखा तो उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो वाकई भूखी और बेसहारा हो चुकी थीं। शुमाइला के दिल में एक ठंडक सी उतर गई। वो समझ बैठी कि अब ये ज्यादा दिन नहीं जी सकेंगी, मगर वो नहीं जानती थीं कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में खामोशी का राज था, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। शमाइला बिस्तर पर लेटी कराह रही थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे थे, मगर आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक थी। जब अब्दुर रहमान काम से लौटा तो उसने बीवी को बेचैन देखा। वो फौरन उसके पास बैठ गया और बोला, शमाइला तुम्हें क्या हो गया है? मैं दुनिया जहान का इलाज करवा दूंगा। शमाइला में कमजोर आवाज में कहा, मेरी बीमारी किसी हकीम या दवा से ठीक नहीं होगी। अब्दुर रहमान घबरा गया। फिर बताओ क्या करूं? तुम्हारी जान के लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये सुनते ही शमाइला के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो फौरन छुप गई। वो बोली, बस एक ही इलाज है, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून ले आओ और मेरे हाथों और पैरों पर मल दो, तभी मैं बच सकती हूँ। ये सुनते ही अब्दुर रहमान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीख उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरी जान है। शमाइला ने आंखें बंद करके कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो यही करना होगा। अब्दुर रहमान कांपते कदमों से घर से बाहर निकला। वो बेटियों को ढूंढता हुआ कब्रिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने अपनी तीनों बेटियों को अपनी मां की कब्र से लिपटकर रोते देखा। ये मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। वो बड़बड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मगर इस औरत के साथ भी तुम्हारी जिंदगी जहन्नम है। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया। अब्दुर रहमान ने बेटियों को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चियों, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वो उन्हें एक घने जंगल में ले गया। वहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाया, खाना पकाया और आखिरी बार बेटियों को पेट भर कर खिलाया। खाने के बाद बेटियां दरख्त के नीचे सो गईं। अब्दुर रहमान ने उनके चेहरों को देखा, एक एक को चूमा और आंसू पोंछते हुए खामोशी से वहां से चला गया। उसके दिल में बस यही ख्याल था, कम से कम ये जिंदा रहेंगी। रास्ते में अब्दुर रहमान ने एक हिरन का शिकार किया और उसका खून ले आया। शमाइला ने वो खून लगाया और खुशी से बोली, अब मुझे आराम आ गया है। उसे यकीन हो गया कि बेटियां मर चुकी हैं। जब रात के आखिरी पहर बेटियां जागीं तो बाप को गायब पाया। मरियम ने चीख कर कहा, अब्बा जान, मगर जवाब में सिर्फ जंगल की आवाजें आईं। दरिंदों की आवाज़ों से तीनों सहम गईं और रोने लगीं। इसी जंगल में 3 नौजवान शिकार के लिए आए थे। उनमें से एक सलमान था। उसने कहा, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ की तरफ बढ़े और 3 खूबसूरत डरी हुई लड़कियों को देखा।
सलमान ने नरमी से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? मरियम ने सारी दास्तान सुना दी। नौजवानों के दिल भर आए। उन्होंने मशवरा किया और कहा, हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते। चंद दिनों में तीनों बहनों की तीनों नौजवानों से शादी हो गई। मरियम की शादी सलमान से हुई। तकदीर ने उनके लिए नया रास्ता चुन लिया। कुछ अरसे बाद मरियम के घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया यूसुफ। मरियम ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, या अल्लाह, इसे हर बुराई से बचाना। मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और यूं 14 बरस गुजर गए। वो नन्हा सा बच्चा यूसुफ अब एक मजबूत, समझदार और बहादुर नौजवान बन चुका था। उसकी आंखों में मां जैसी गहराई और लहजे में बाप जैसी शराफत थी। उसे उसकी दोनों खालाओं आयशा और हफ्सा ने मां बनकर पाला था। मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता, मेरी मां कहां है? मेरे बाप का क्या हुआ? एक दिन खालाओं ने सच छुपा ना सकी। उन्होंने यूसुफ को सब कुछ बता दिया। जादूगर, जंगल और मां का अगवा। यह सुनकर यूसुफ की आंखों में आग सी भर गई। वो बोला, खाला, मैं अपनी मां को ढूंढ कर रहूंगा। अगर ना गया तो सारी जिंदगी ये खलिश रहेगी। खालाओं ने बहुत रोका, मगर यूसुफ का फैसला अटल था। यूसुफ कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा। आखिर वो एक अजीब इलाके में पहुंचा, जहां हर तरफ पत्थर के इंसान, पत्थर के दरख्त और पत्थर की इमारतें थीं। वो हैरान रह गया। उसी वक्त एक नूरानी बुजुर्ग सामने आए। ये हजरत फाजिल थे, वही बुजुर्ग जिनकी झोपड़ी कभी जलाई गई थी। उन्होंने अफसोस से कहा, बेटा, ये सब कभी इंसान थे। एक जालिम जादूगर सबको पत्थर बना चुका है। यूसुफ ने अपनी कहानी सुनाई। हजरत फाजिल मुस्कुराए, अल्लाह ने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना है। हजरत फाजिल ने यूसुफ को अपना पोता जाहिर किया। जब साहिर असवद यानी जादूगर को खबर मिली कि गांव में नया लड़का आया है, तो वो खुद देखने आ गया। उसने यूसुफ को गौर से देखा और बोला, ये लड़का मासूम है, इसे मेरे काम आना चाहिए। उसने यूसुफ को हुक्म दिया, तुम रोज एक कैद लड़की के पास मेरा पैगाम ले जाया करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। यूसुफ समझ गया कि वही लड़की उसकी मां है। यूसुफ के हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी, वही जो मरियम ने उसे बचपन में पहनाई थी। हजरत फाजिल ने कहा, इसे फूलों में छिपा दो। एक दिन जब पहरेदार न था, यूसुफ ने अंगूठी गुलदस्ते में रख दी। अंगूठी जमीन पर गिरी, छन की आवाज आई। मरियम ने अंगूठी उठाई, आंखों से लगाई और यूसुफ की तरफ देखा। मां और बेटे की नजरें मिली, सच अयान हो गया। दोनों रो पड़े, मगर खामोश। मरियम ने चालाकी से साहिर असवद से शादी की हामी भर ली और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने गुरूर से कहा, मेरी जान एक तोते में है जो जंगल के दरख्त के नीचे कैद है। मरियम ने यह राज यूसुफ तक पहुंचा दिया। यूसुफ कई दिन की मेहनत के बाद उस दरख्त तक पहुंचा और मौका पाकर तोता चुरा लिया। जब वो वापस आया तो जादूगर चीख उठा। यूसुफ ने शर्त रखी, तमाम कैदी आजाद करो। जादूगर ने मजबूरन सबको आजाद किया, मरियम, सलमान, आयशा, हफ्सा और बेशुमार मजलूम। फिर यूसुफ ने तोते के पर नोचे। जादूगर कमजोर पड़ गया। आखिर तोते की गर्दन मरोड़ी गई और जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब लोग हजरत फाजिल के पास आए और शुक्र अदा किया। मरियम अपनी बहनों और शौहर सलमान से मिली। अब्दुल रहमान भी आया। बेटियों को जिंदा देखकर रो पड़ा। उसने माफी मांगी। बेटियों ने कहा, अब्बा, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह ने हमें सब्र का अज्र दिया। अब्दुल रहमान ने बताया कि शमाइदा खुद अपनी बीमारी में मर गई। आखिरकार सब ने सुकून और खुशी से जिंदगी गुजारी। सबक, जुल्म वक्ती होता है, सब्र हमेशा जीतता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी हारता नहीं।